مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر ہندوستان کا معتبر، مستند اور باوقار ادارہ ہے۔ اس ادارے کا مقصد مدارس کے فضلاء کو انگریزی زبان و ادب کی تعلیم سے آراستہ کرنا اور قوم و ملت کے لیے انہیں تیار کرنا ہے۔ اس ادارے کا مقصد ہے کہ مدارس کے فضلاء انگریزی زبان سیکھ کر عالمی سطح پر دین کے پیغام کو پہنچائیں، قرآن، حدیث اور تفسیر کی تعلیمات کو عام کریں، اور وہ لوگ جو اردو زبان نہیں جانتے ہیں ان تک ملت کی آواز کو پہنچائیں، دینی علوم کو پہنچائیں۔ اس ادارے کا قیام 1994 میں دہلی کی سرزمین پر عمل میں آیا تھا۔ اس کے بانی، اس تحریک کو چلانے والے اور اس فکر کو پیدا کرنے والے معروف مذہبی، سیاسی، ملی رہنما مولانا بدرالدین اجمل قاسمی ہیں۔ ان کے تحریک مسلسل کامیابی کی طرف رواں دوا ہے، اور آج مرکز کے طور پر ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور آسام سے لے کر گجرات تک 10 ادارے چل رہے ہیں۔ مرکز کے زیر اہتمام براہ راست تقریباً 10 ادارے چل رہے ہیں، جن کا مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر سے الحاق ہے۔ اس کے علاوہ بھی مرکز کے طرز پر آزادانہ طور پر کئی ادارے چل رہے ہیں جو مدارس کے فضلاء کا اپنے یہاں داخلہ لیتے ہیں اور 2 سالوں میں انہیں انگریزی زبان و ادب کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں۔ 2 سال میں طلبہ اتنی انگریزی زبان سیکھ جاتے ہیں جس سے وہ انگریزی زبان میں تقریر کرنے پر قادر ہوتے ہیں، انگریزی مضمون لکھنے پر قدرت رکھتے ہیں، انگریزی میں تبلیغ کرنا، انگریزی میں اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانا، اپنی مافی ضمیر کی ادائیگی کرنا وہ آسان کام ان کے لیے ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ ادارہ اپنے مقصد میں مسلسل کامیاب ہے۔ یہ مفتی محمد اللہ قاسمی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، معروف اسلامی اسکالر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، دارالعلوم دیوبند کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں۔ آپ مرکز کے پروڈکٹ ہیں اور مرکز کی ماہنامہ میگزین ایسٹرن کریسنٹ کے مستقل کالم نگار ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے مرکز کے بارے میں؟ مرکز المعارف حضرت مولانا بدرالدین صاحب کی طرف سے جو شروع کیا گیا ہے ایک انقلابی کارنامہ ہے، جس کے ذریعے سے الحمدللہ فضلہ مدارس کو انگریزی اور جدید علوم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، اور مرکز المعارف کے فضلہ ایک انقلابی خدمات انجام دے رہے ہیں اپنے میدانوں میں۔ مرکز المعارف سے اب تک 2000 سے زائد طلبہ فارغ ہو چکے ہیں اور دنیا بھر میں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ مولانا توقیر احمد قاسمی ہیں، مرکز المعارف کے مایہ ناز طالب علم رہے ہیں، ابھی دارالعلوم دیوبند میں قائم شعبہ انگریزی کے صدر ہیں۔ فی الحال مرکز کے زیر انتظام ہونے والے امتحان کی اب نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے مرکز کی خدمات کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز المعارف کی خدمات تعلیمی اعتبار سے مسلم ہیں۔ اگر آپ مرکز المعارف کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرکز المعارف سے نکلنے والے طلباء ہر میدان میں، تعلیمی میدان میں، صحافت کے میدان میں اور تقریری میدان میں ہر اعتبار سے جو ہے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے بہت سے فضلاء جرنلزم میں گئے ہیں اور وہ صحافت کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہت سارے طلباء یہاں کے بہت سارے مدارس میں انگریزی پڑھا رہے ہیں۔ بہت سے طلباء ایسے ہیں جو ہندوستان کے باہر چلے گئے ہیں اور وہاں انگریزی زبان میں تقریریں کرتے ہیں۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو انگریزی میگزینس اپنی نکال رہے ہیں، انگریزی مجلے کے اندر، انگریزی منتھلی میگزینس کے اندر وہ ایڈیٹر یا سب ایڈیٹرز کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے باہر جو اسکولز ہیں اس میں بھی جو ہے بہت سارے یہاں کے پڑھے ہوئے بچے جو ہے اپنی تعلیمی خدمات جو ہے انجام دے رہے ہیں، تدریسی خدمات خاص طور سے انجام دے رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ مرکز نے ایک بایو ڈاٹا تیار کیا ہے جس میں یہاں سے فارغ ہونے والے تقریباً سبھی طلباء کے ڈاٹا کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور اس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آئی ہے کہ مرکز سے فارغ ہونے والے الحمدللہ 95% سے زیادہ طلباء دین کے اعتبار سے دین کی خدمات کسی نہ کسی طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ مرکز المعارف سے نکلنے والے 95% سے زائد طلباء انگریزی زبان کے ذریعے دین کی خدمات کر رہے ہیں، مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں، قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ مذہب کا تاریخی اور انقلابی کارنامہ ہے اور اس کا صحرا براہ راست مولانا بدرالدین اجمل قاسمی کو جاتا ہے۔
हमारे साथ मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर मारूफ आलिम दीन मौलाना बुरहानुद्दीन क़ासमी हैं, जिनकी क़यादत में इदारा चल रहा है और 10 इदारे इस तरह के चल रहे हैं जो तलबा मदारिस को अंग्रेज़ी ज़बान और अदब की तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। मौलाना, आप क्या कहेंगे मरकज़ुल मारिफ और इसकी खिदमत के बारे में, और कैसे आप पूरा सिस्टम चला रहे हैं और इसके क्या नताइज आपको मिल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त यहाँ मरकज़ुल मारिफ और उसके ज़ेर निगरानी 8 इदारों के इम्तहानात चल रहे हैं। इसमें हम तफसीली बात नहीं कर पाएंगे और बच्चे इम्तहान दे रहे हैं। इस वक्त मुख्तसर ये है कि तकरीबन 1000 बच्चे इस इम्तहान में शरीक हुए हैं और हिंदुस्तान के तकरीबन हर शोबे के बच्चे इसमें शामिल हैं और यहाँ इम्तहानात होते हैं। ये तहरीरी इम्तहान जो आप देख रहे हैं, ये तहरीरी इम्तहान चल रहा है। जो 50 नंबर के इम्तहान है, इसमें से जो 25 नंबर जिनको मिलेगा उनको कल तकरीरी इम्तहान के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें कम से कम उनको 25 स्कोर करना है 50 में से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1994 से लेकर के 300 बच्चे इस अदारे से फारिग हुए हैं। हिंदुस्तान के 17 ममालिक में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ मैदानों में, तहरीर के मैदान में, तकरीर के मैदान में, समाजियात में और इल्मी मैदान में, हर मैदान में हम लोग काम कर रहे हैं। 1994 से इदारा मुसलसल कायम है और हर साल बाज़ाब्ता इसका इम्तहान होता है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम वक़्फ़, जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, दारुल नदवतुल उलमा समेत मुल्क भर में फैले मदारिस के तलबा मरकज़ुल मारिफ के इम्तहान में हिस्सा लेते हैं। यही इम्तहान 2 हिस्सों में होता है, पहला तकरीरी और उसके बाद पहला तहरीरी इम्तहान होता है, उसके बाद तकरीरी इम्तहान होता है। जो तलबा रिटन में कामयाब हो जाते हैं उन्हें वाइवा में शरीक किया जाता है और फिर वाइवा में शरीक होने के बाद तलबा को पास किया जाता है जो मरकज़ुल मारिफ और उसके तहत चलने वाले इदारों में दाखिला लेने के अहल होते हैं। मरकज़ुल मारिफ का इम्तहान और ये सिलसिला मुसलसल जारी है और हर साल देवबंद की सरज़मीन पर इम्तहान होता है। हर साल तकरीबन 800 से ज़ायद तलबा इम्तहान में हिस्सा लेते हैं। साल रवां भी तकरीबन 1000 से ज़ायद तलबा इस इम्तहान में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सामने मारूफ आलिम दीन और मरकज़ुल मारिफ के सीनियर उस्ताद मौलाना मुदस्सिर अहमद क़ासमी हैं। आप मरकज़ से निकलने वाली अंग्रेज़ी मैगज़ीन ईस्टर्न क्रिसेंट के एसोसिएट एडिटर हैं। इसके अलावा आप रोज़नामा इनकलाब के मुस्तक़िल कॉलम निगार हैं और इनकलाब मुंबई एडिशन में रोज़ाना आपका कॉलम एडिटोरियल के पेज पर आता है। आप मरकज़ के बारे में क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, जो तलबा मरकज़ुल मारिफ में दाखिले के लिए आते हैं वो फ़ज़लाए किराम, मुफ्तियान किराम और उदबा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी उलूम में मुकम्मल दस्तगाह रखते हैं। सिर्फ़ हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें बेहतरीन अंग्रेज़ी ज़बान व अदब सिखा दें ताकि उन्होंने जो मदरसे में पढ़ा है, कुरान और हदीस की जो तालीम हासिल की है, उसको अंग्रेज़ी ज़बान में मुंतकिल कर सकें और आलमी मज़हब के आलमी पैगाम को आलमी पैमाने पर पहुँचाने के अहल हो सकें। और हमारा असल मकसद ही यही है कि हम इन उलमाए किराम को जदीद ज़माने के तकाज़ों से हम आहंग करें। ये ज़माना जो है चैलेंजेस का ज़माना है। हम कोशिश ये करते हैं कि उनके अंदर ये सलाहियत और काबिलियत आ जाए कि वो ज़माने के चैलेंजेस को फेस करने के अहल हो जाए और जो एतराज़ात इस्लाम के ख़िलाफ़ किए जाते हैं उनका सही कुरान और हदीस की जो रोशनी में जवाब दे सकें। मरकज़ुल मारिफ के अग़राज़ व मक़ासिद में मुंदरज ज़ैल सर फ़हरिस्त हैं दीनी मदारिस और जामियात से फ़ारिग़ तहसील तलबा को अंग्रेज़ी ज़बान और अदब, कंप्यूटर और इंटरनेट की तालीम देना, अंग्रेज़ी ज़बान में तहरीर और तक़रीर के ज़रिए दीन इस्लाम के दिफ़ा और तबलीग़ व इशाअत करना, अंग्रेज़ी सहाफ़त में मोतबर और बासलाहियत उलमा की टीम तैयार करना, उलमा का एक ऐसा ग्रुप तैयार करना जो वक्त और मिलत के तकाज़ों से हम आहंग और जदीद तरीक़े तहक़ीक़ व तसनीफ़ पर क़ादिर हो, ऐसे उलमा तैयार करना जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तालीमी, समाजी, मिली और मजहबी मैदानों में मुसलमानों की सही रहनुमाई कर सकें। मरकज़ुल मारिफ में तलबा को अंग्रेज़ी ज़बान व अदब की तालीम देने के साथ बाज़ाब्ता वहाँ अकाबिर की किताबों का अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जमा के लिए एक सेंटर भी कायम है और ये सेंटर दिल्ली में वाक़ है। दिल्ली में मरकज़ुल मारिफ के सेंटर के इंचार्ज मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान क़ासमी हमारे साथ हैं। अभी इन्होंने किताब का तर्जमा किया है जिसका इजरा नायब सदर जमहूरिया जनाब हामिद अंसारी के हाथों हुआ। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान क़ासमी साहब, मरकज़ और उसकी खिदमात के बारे में आप क्या कहेंगे और अब तक मिल्लत को इससे क्या फ़वाइद मिले हैं?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मरकज़ुल मारिफ ने जो खिदमत अंजाम दी है उसका नतीजा ये है कि एक आलिम दीन जब मदरसे से फारिग होता है, पहले अंग्रेज़ी नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ी इतनी अच्छी जानने लगा कि किताबें लिखने लगे माशाअल्लाह, और उसके बाद तर्जमे भी करने लगे। और उनकी खिदमत ये है कि इंटरनेट पर और दीगर सोशल मीडिया पर बहुत सारे मवाद अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी ज़ुबान में आ चुके हैं और आ रहे हैं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह बहुत सारे मवाद आएंगे। मेहनत जारी है, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये तलबा दौर हदीस और दीगर शोबों के तलबा है जो दौर हदीस के बाद का शोबा होता है। ये सारे तलबा यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि तलबा क्यों मरकज़ुल मारिफ का इम्तहान दे रहे हैं, क्यों दाखिला लेना चाहते हैं, बताइए, बैठ के बोलिए। हम इसलिए इम्तिहान दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इम्तिहान देने के लिए ताकि मरकज़ुल मारिफ के अंदर जाके दीन का बड़े पैमाने पे काम कर सके, क्योंकि ये हमारी ख्वाहिश है और तमन्ना है ताकि जो उम्मत के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, मरकज़ुल मारिफ के अंदर जाकर हमें एक नया रास्ता मिले और एक नई मंजिल मिले। और उस मतलब आप जो कुछ दारुल उलूम में पढ़ रहे हैं इससे आपको नहीं लगता है कि आप मिल्लत की खिदमत अंजाम दे सकेंगे? खिदमत अंजाम दे सकते हैं, लेकिन उस लेवल से असर हाजिर के एतबार से और ज़्यादा खुलकर जो मौक़े वहाँ अंग्रेज़ी फराहम ज़ुबान सीख लेंगे तो ज़्यादा मौक़े होंगे और ज़्यादा काम आप करेंगे, आसान हो जाएगा उससे काम। आप क्यों सीख रहे हैं, आप क्यों दाखिला ले रहे हैं? इसलिए ताकि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख कर कुरान और हदीस को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा सके। हिंदुस्तान में भी तो बहुत सारी जगह हैं काम करने की जहाँ उर्दू ज़ुबान में आप काम कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत का एक बहुत अंग्रेज़ी ज़ुबान इंटरनेशनल ज़ुबान है और जितना आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं किसी और ज़ुबान में मुमकिन नहीं है। जी जी। क्यों आप मरकज़ के तहत इम्तहान दे रहे हैं? जी सर, मेरा कहना यह था, मेरी एक राय थी, मैं इसलिए अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ कि इस्लाम के जो पैगामात हैं, यूरोप ममालिक इस्लाम पर बेजा एतराज़ात जो करते हैं उसका हम वो इंग्लिश ज़ुबान में उसका हल इंशाल्लाह पेश करेंगे। और इसी तरीके से जिस तरीके से एक दौर था कि ज़ुबान फ़ारसी की अहमियत थी, हिंदुस्तान में बोलबाला था, उसी तरीके से आज वक्त का चैलेंज है कि हम इंग्लिश ज़ुबान अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने का शौक़, लगन, जज्बा कब पैदा हुआ आपको? जब हम दीगर मौक़े जो हमारे सामने पेश आते हैं, ख़ास तौर से स्टेशन पर, बैंक में, इसी तरीके से अदरवाइज़ और भी जगहें हैं, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें एहसास कमतरी का शिकार होना पड़ता है। क्यों आप यहाँ दाखिला लेना चाहते हैं? सबसे पहली बात ये है कि आज से अगर 1000 साल पहले अगर इस्लाम दूसरे तक पहुँचाना होता, बहुत मुख्तसर बोलेगा, 10 सेकंड में। हज़ारों लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी है। इस दौर में हम सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान सीख करके पूरी दुनिया में इस्लाम पहुँचा सकते हैं। और मरकज़ुल मारिफ का इंतख़ाब इस वजह से किया जाता है कि यहाँ हम दीन वक़ार के साथ, पूरे तशख़्ख़ुसात के साथ हम अंग्रेज़ी ज़बान सीख सकते हैं। मरकज़ुल इमाम शाह वलीउल्लाह एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर मौलाना आमिर इकबाल क़ासमी भी यहाँ मौजूद हैं। उनका भी मरकज़ुल मारिफ से इल्हाक़ है और वो यहाँ मौजूद हैं इम्तिहान सेंटर में। आप क्यों ये अदारा चला रहे हैं और किस मकसद के खातिर आप ये सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं? हमारे पेश नज़र एक ही मकसद है कि कुरान और सुन्नत का जो बेआमेज़ पैगाम है वो दुनिया इंसानियत में, दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले हर इंसान तक कुरान का पैगाम पहुँचाएँ। और इसीलिए हम ये मुश्किल काम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 1994 में मरकज़ुल मारिफ के क़याम के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में ये सिलसिला कायम किया गया, ये अदारा कायम किया गया। दारुल उलूम देवबंद में भी ग़ालिबन 1999 या 2001 में शोबा कायम किया और अब दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद में भी शोबा कायम किया गया है और वहाँ अदारा चल रहा है। उस शोबा के सदर मौलाना सज्जाद क़ासमी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने मरकज़ुल मारिफ मुंबई से तालीम हासिल की है। दारुल उलूम वक़्फ़ में शोबा क्यों कायम किया गया और इसके क्या ज़रूरी नताइज आप महसूस कर रहे हैं? दारुल उलूम वक़्फ़ ने जब ये देखा कि आलमी हालात बिगड़ते जा रहे हैं और आलमी हालात में अंग्रेज़ी मीडिया का, प्रिंट मीडिया का ज़्यादा दौरा है, तो दारुल उलूम वक़्फ़ ने ये महसूस किया और महसूस करते हुए उन्होंने इस शोबे का क़याम में लाया। और बुनियादी मक़ासद इस शोबे के ये हैं कि उलमा को, उनको मीडिया फेस करने के लिए और मीडिया के जो फैलाए गए खुराफात इस्लाम के ताल्लुक़ से या इस्लाम की शनाख्त को मिटाने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसके ताल्लुक़ से वो मुस्बत जवाब दे सकें।
اسلام کے تعلق سے پھیلی ہوئی گمراہی اور غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے مولانا بدرالدین اجمل نے شعبہ قائم کیا تھا اور وہ پورے ہندوستان میں سلسلہ چل پڑا ہے. مختلف ادارے قائم ہو چکے ہیں, 10 ادارے مرکز کے زیر انتظام چل رہے ہیں. اس کے علاوہ علیحدہ طور پر لوگوں نے اپنے ادارے قائم رکھے ہیں. تمام ذمہ داروں کا, تمام طلباء کا, تمام شائقین کا کہنا ہے کہ شعبے سے جڑنے کا مقصد انگریزی زبان سیکھ کر اسلام کے مقصد کو, اسلام کے پیغام کو, جو اسلام آفاقی مذہب ہے اس کے پیغام کو آفاقی بنانا ہے اور پوری دنیا تک اس کے پیغام کو پہنچانا ہے. اور اس کے لیے واحد ذریعہ انگریزی زبان ہے, اس لیے سارے لوگ انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں. یہی مقصد ہے اور اسی کے پیش نظر تقریباً 1000 طلبہ ہر سال داخلہ امتحان میں شریک ہوتے ہیں اور وہ جا کر انگریزی زبان سیکھتے ہیں. فراغت کے بعد ہندوستان سمیت پوری دنیا میں خدمات انجام دیتے ہیں, انگریزی میں مضمون لکھتے ہیں, انگریزی ڈبیٹ میں حصہ لیتے ہیں, انگریزی میں کتابیں لکھتے ہیں, تصنیف کرتے ہیں, فقہ, تفسیر, حدیث اور اکابرین کی کتابوں کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں. اور اس طرح جو علوم ہندوستان میں محدود تھا اب وہ انگریزی زبان کے بعد پوری دنیا میں پھیل گیا ہے اور ساری دنیا دارالعلوم دیوبند سے فیضیاب ہو رہی ہے. مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر. مرکز المعارف میں پڑھائے جانے والے شعبے کا نام ہے ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر, جس سے طلبہ استفادہ کر رہے ہیں اور اس کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. ملت ٹائمز کے لیے رپورٹ شمس تبریز قاسمی کی.